শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি, সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা চৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলায় আছি, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ চলছে, দ্বিতীয় অধ্যায় চলছে। আর আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 12 থেকে कंटिन्यू করব। रिमेंबर, पूरा एकदम डीप थियोरी क्लास है। थियोरी समझ रहे हो? कोई लीला, पूरा डीप थियोरी क्लास। 100% कंसंट्रेशन जिनका होगा, थोड़ा कुछ वो समझ पाएगा, थोड़ा कुछ। इसलिए 100%। अभी नींद आएगा तो पूरा गया, समय बर्बाद, ये याद रखिएगा। अगला 45 मिनट्स टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। 12 নম্বর শ্লোক। তাহারও অঙ্গেরও শুদ্ধ কিরণমণ্ডল। কেউ একজন বলুন। তাহারও অঙ্গেরও শুদ্ধ কিরণমণ্ডল। উপনিষদ কহে তারে ব্রহ্ম সুনির্মল। उपनिषद कहे तारे ब्रह्म सूर्य निर्मल। तो ये तो हम लोग को मालूम है। म्यूट। ताहार माने भगवान का अंगेर शुद्ध किरण मंडल के उपनिषद ब्रह्म सुनिर्मल बोलছে, ब्रह्म ज्योति बोलছে। উপনিষদে যাকে নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপে অভিহিত করা হয়েছে তা হচ্ছে সেই পরম পুরুষের অঙ্গ প্রভা। কারেক্ট, সিম্পল है। তাৎপর্য, মুন্ডক উপনিষদে প্রদত্ত 3টি শ্লোকে পরমেশ্বর ভগবানের অঙ্গপ্রভা বা দেহ নির্গত রশ্মির ছটা সম্বন্ধে তত্ত্ব প্রদান করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, ये शायद ईशोपनिषद का श्लोक है, हिरण्मय परोकोशे विरजं ब्रह्म निष्कलम तच्छुभ्रं ज्योतिषां ज्योति साज्जदात्मा विदो विदु। ना तत्र सूर्योभात ना तत्र सूर्योभाति न चंद्रतारकं नेमा विद्युत भान्ति कुतोऽयं अग्नि तमैव भान्तो मनुभाति सर्वं तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति ब्रह्मवेदममृतं परस्ताद्रक्षं पश्चाद्रक्ष दक्षिणस्तश्च उत्तरेण अधश्च धं च प्रसृतं ब्रह्मै वेदं विश्वमिदं वरिष्ठम। तो उपनिषद में ये श्लोक दिया हुआ है, इसका अर्थ क्या है? जड़ आवरणेर ऊर्ध्वे জীব জগতের অন্তহীন ব্রহ্মজ্যোতি রয়েছে, যা সব রকমের জলকলুষ থেকে মুক্ত। সেই জ্যোতির্ময় শুভ্র আলোককে তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষেরা সমস্ত জ্যোতির জ্যোতি বলে জানেন। সেই চিন্ময় লোককে উদ্ভাসিত করার জন্য সূর্য রশ্মি, চন্দ্রকিরণ, অগ্নি অথবা বিদ্যুতের প্রয়োজন হয় না। বাস্তবিকই জড়জগতে যে আলোক দেখা যায় তা সেই পরম জ্যোতির প্রতিবিম্ব মাত্র। সেই ব্রহ্ম সম্মুখে ও পশ্চাতে, উত্তরে দক্ষিণে, পূর্বে পশ্চিমে এবং উপরে ও নিচে সর্বত্রই পরিব্যাপ্ত। পক্ষান্তরে বলা যায় সেই ব্রহ্মজ্যোতি জড় ও চেতন আকাশের সর্বত্রই পরিব্যাপ্ত। ओके, ये है ब्रह्म ज्योति का विश्लेषण। तो भगवान ब्रह्म ज्योति रूप में उपलब्ध हो सकता है, ये उपनिषद में कहा गया है। उसका 3-4 सपोर्टिंग श्लोक दे दिया तात्पर्य में प्रभुपाद जी। अगला श्लोक 13 नंबर। चर्मचक्षे देखे হয়েছে পূর্ব নির্বিশেষ। চর্মচক্ষে দেখেছে পূর্ব निर्विशेष। कितना आवाज आ रहा है बैकग्राउंड से? क्या चल रहा है बैकग्राउंड में? पंखा या क्या चल रहा है? और वो कोई चीज का आवाज नहीं है, डबल फोन से हो रहा होगा प्रभु। अच्छा। ज्ञान मार्गे लইতে না রে কৃষ্ণের বিশেষ। ज्ञान मार्गे लेते हमारे कृष्ण विशेष। শ্লোকার্থ, চর্মচক্ষে যেমন সূর্যকে এক নির্বিশেষ জ্যোতির্মণ্ডল বলে মনে হয়,
অর্থাৎ সূর্যের সবিশেষ বৈচিত্র্য দর্শন হয় না, তেমনি মনোধর্ম প্রসূত দার্শনিক জ্ঞানের মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণের চিন্ময় বিশেষত্ব উপলব্ধি করা যায় না। समझ में आया? आप अगर नेकेड आइज, चर्मचक्षु, इसका इंग्लिश पढ़िए। As with the naked eye, one cannot know the sun except as a glowing substance. Merely by philosophical speculation, one cannot understand Lord Krishna's transcendental varieties. अगला श्लोक 14 नंबर। जस्या प्रभा प्रभवतो जगदण्ड कोटि, यस्य प्रभा पर्वतो जगदण्डकोटि, कोटि अशेष वसुधा विभूति भिन्नम्, कोटि अवशेष वसुधा विभूत भिन्न, तत्तन्मनिष्कलमनन्तमशेषभूतम्, तत्रं निष्कलं अनंत शेषभूतं, गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। ओह माय गुडनेस, और कोई रिपीट करिए, बहुत आवाज बैकग्राउंड में। ওকে স্যার, ওকে, আমি চেষ্টা করতে পারি। ওকে। অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত বসুধাদি বিভূতি থেকে যা পৃথক, সেই অখণ্ড অনন্ত অশেষ ভূত ব্রহ্ম যার প্রভা, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি। তো এই অনুবাদে কোন পোর্শনটা ইম্পর্টেন্ট যার জন্য এই শ্লোকটিকে কোট করেছে, বা এই শ্লোকে कौन पर्टिकुलर पोर्शन के लिए कविराज गोस्वामी इस श्लोक को कोट कर रहा है? दरकार नहीं है कि पूरा पोर्शन, विच पोर्शन? प्रश्न समझ में आ रहा है मैं क्या पूछ रहा हूँ? অনন্ত অশেষ ভূত ব্রহ্ম যার প্রভা। हाँ, একদম ওই পোর্শনটার জন্য অশেষ ভূত মানে এই ব্রহ্মজ্যোতি যার প্রভা, মানে শরীরের অঙ্গ কান্তি, এই জিনিসটা কোট করার জন্য পুরো শ্লোকটাকে কোট করেছে। তাৎপর্য, এই শ্লোকটি ব্রহ্ম সংহিতা ৫ম অধ্যায়ের 40 নম্বর থেকে উদ্ধৃত। অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডই বিভিন্ন আকৃতি ও পরিবেশ সমন্বিত অসংখ্য গ্রহ নক্ষত্রে পূর্ণ, যে সমস্তই প্রকাশিত হচ্ছে অনন্ত অদ্বয় ব্রহ্ম বা পরম পুণ্য থেকে, যা পুণ্য জ্ঞানে বিরাজমান। এই যে অনন্ত অদ্বয় ব্রহ্ম বলা হয়েছে, এটাই হচ্ছে ব্রহ্মজ্যোতি। সেই অন্তহীন ব্রহ্মজ্যোতির উৎস হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রী গোবিন্দের চিন্ময় দেহ, এবং সেই গোবিন্দই আদি পুরুষ রূপে বন্দিত হয়েছেন। ठीक है इंद्रावती माता जी, समझ में आ रहा है? अगला श्लोक 15। कोटि कोटि ब्रह्मांडे जे ब्रह्मेर विभूति, কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে যে ব্রহ্মের বিভূতি, সেই ব্রহ্ম গোবিন্দের হয় অঙ্গ কান্তি। সেই ব্রহ্ম গোবিন্দের হয় অঙ্গ কান্তি। ব্রহ্মা বললেন যে নির্বিশেষ ব্রহ্মের বিভূতি কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে পরিব্যাপ্ত, সেই ব্রহ্ম হচ্ছেন গোবিন্দের অঙ্গকান্তি। সেই গোবিন্দ ভজি আমি তেহ মোর পতি, সেই গোবিন্দ ভজি আমি দেহ মোর পতি, তাহার প্রসাদে মোর হয় সৃষ্টি শক্তি। তাহার প্রসাদে মোর হয় সৃষ্টি শক্তি। আমি ব্রহ্মা গোবিন্দের ভজনা করি, তিনি আমার পতি, তার কৃপাতেই আমি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করার শক্তি লাভ করেছি। তাৎপর্য, সূর্য যদিও সমস্ত গ্রহগুলি থেকে বহু দূর অবস্থিত, তবু তার কিরণ সমস্ত গ্রহগুলিকে পালন করে। বাস্তবিক পক্ষে সূর্য তার তাপ ও আলোক সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে বিতরণ করে, তেমনি পরম সূর্য গোবিন্দ তার বিভিন্ন
শক্তি রূপে সর্বত্র তাপ ও আলোক বিতরণ করেন। সূর্যের তাপ ও আলোক সূর্য থেকে অভিন্ন, তেমনি গোবিন্দের অনন্ত শক্তি স্বয়ং গোবিন্দ থেকে অভিন্ন। তাই সর্বব্যাপ্ত ব্রহ্ম হচ্ছে সর্বব্যাপ্ত গোবিন্দ। ব্রহ্মজ্যোতি গোবিন্দই হ্যাঁ। ভাগবত গীতায় 14 অধ্যায়ের 29-27 নম্বর শ্লোকে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে নির্বিশেষ ব্রহ্মের আশ্রয় হচ্ছেন গোবিন্দ। সেটি হচ্ছে যথার্থ তত্ত্বজ্ঞান। क्लियर है? किसी का कोई प्रश्न है? अगला श्लोक 17 नंबर। इसका ट्यून का लिए 2.70। नहीं, नॉर्मल है। मुनयो वासना मुनायो बात वासना श्रमना ऊर्ध्वमा मनहीनो समना ऊर्ध मंथिन ब्रह्माख्यं धाम ते जानति ब्रह्माख्यं धाम ते जानति शान्ता सन्न्यासिनो हमला शान्ताः सन्न्यासिनः मला। এই শ্লোকটি শ্রীমদ্ ভাগবতের 11 স্কন্ধের 6ম অধ্যায়ের 47 নম্বর শ্লোক। এখানে বলা হয়েছে दिगंबर। दिगंबर माने समझ में आ रहा है? जो निर्वस्त्र सन्यासी साधु लोग होता है, दिगंबर। श्रमशील, श्रमशील माने जो बहुत तपस्या करता है, कठिन तपस्या करता है, पहाड़ में ठंड में जाकर तपस्या करता है, ध्यान करता है। ओ ऊर्ध्वरेता मुनुगण, ऊर्ध्वरेता जो अपना वीर्य को अपने मस्तिष्क तक ला सकता है, वैसे बहुत बहुत कठोर तपस्वी एवं शांत ও বিমল চিত্ত সন্ন্যাসীরা ব্রহ্মলোক নামক ধাম প্রাপ্ত হয়। শ্রীমদ্ ভাগবতের এই শ্লোকটি বাত ও বাসনা শব্দটি সেই সমস্ত পরমার্থীবিদের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে যারা কোন রকম জড় বস্তুর উপর নির্ভর করেন না। तो इन लोग कोई भी जड़ वस्तु, ये सब सन्यासी साधु लोग कोई भी जड़ वस्तु के ऊपर निर्भर करें ना। यस प्रभु, बोलिए बोलिए बोलिए। ये क्या योग साधना करते हैं? फिर से बोलिए, क्या प्रश्न है? ये जो मुनिगण है, दिगंबर, श्रमशील, ऊर्ध्वरेता, तो ये क्या योग साधना करते हैं? हाँ, योगी लोगों के बारे में बता रहे हैं। यस, এমনকি তাদের দেহ আবৃত করার জন্য তারা বস্ত্র পরিধান করার প্রয়োজন বোধ করেন না, একদম দিগম্বর। পক্ষান্তরে তারা সর্বতভাবে প্রকৃতির উপর নির্ভর করেন। এই ধরনের তপশ্চর্য পরায়ণ সাধুরা প্রচন্ড শীতে অথবা উত্তপ্ত গ্রীষ্মে তাদের দেহ আবৃত করেন না। সব রকম দৈহিক কষ্ট উপেক্ষা করে তারা কঠোর তপশ্চর্য পালন করেন এবং দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে জীবন ধারণ করেন। জ্ঞাত সারে অথবা অজ্ঞাত সারে তারা কখনো বীর্যপাত করেন না। এইভাবেই কঠোর ব্রহ্মচর্য পালন করার ফলে তারা ऊर्ध्वरेता हन। ऊर्ध्वरेता वो मैंने बोला था, तो वीर्यपात नहीं करते तो पूरा एकदम सर से ब्रह्मरंध्र से निकालते। हु कैन रेज सीमेंट टू द ब्रेन, उसका अर्थ है ऊर्ध्वरेता। তার ফলে তাদের বুদ্ধি ও স্মৃতি শক্তি অত্যন্ত প্রখর হয়। very very memory is very very sharp. why? because they don't waste their semen. जो सीमेंट वेस्ट करता है उनका मेमोरी डल होता है, वो कंटस फंटस कुछ नहीं कर पाएगा। इसीलिए कलयुग में शास्त्र को लिखना जरूरी हुआ, बाकी तीनों में दरकार नहीं था। बहुत लोग बोलते हैं हमको कुछ लोग को कुछ याद नहीं रहता है, कुछ मेमोरी बहुत, दिस इज वन ऑफ द रीजन। তার ফলে তাদের বুদ্ধি ও স্মৃতি শক্তি অত্যন্ত প্রখর হয়।
তাদের মন কখনো পরম তত্ত্বের ধ্যান থেকে বিচ্যুত হয় না এবং তারা কখনোই জড় ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের বাসনার দ্বারা কলুষিত হন না। এইভাবে কঠোর তপশ্চর্য পালন করার মাধ্যমে এই ধরনের তপস্বীরা জড়া প্রকৃতির স্তর অতিক্রম করেন এবং নির্বিশেষ ব্রহ্মে প্রবেশ করে সেখানে স্থিত হন। যেটা লেখা হয়েছিল অনুবাদে, ব্রহ্মলোক নামক ধাম প্রাপ্ত হন। ঠিক আছে, তো এই ব্রহ্মজ্যোতিতে তারা সেই যোগীরাও प्राप्त हन, आश्रय प्राप्त। ये सत्यभामा माता जी, वो लोग निर्विशेषवादी होते हैं। यहाँ तो अभी तक लिखा नहीं है। फिर ब्रह्म में ही समा जाते हैं, ऐसे क्यों बोला गया है? हाँ, तपस ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि उन लोग जाते हैं उधर, तो क्या बोला जाएगा? इनकी आयु ब्रह्मज्योति में प्रवेश करता है, क्यों बोला गया है? माने वही जाएगा तो क्या बोला जाएगा? वो ब्रह्म ज्योति की उपासना तो निर्विशेषवादी लोग ही तो करते हैं ना? नहीं, ओनली नॉट ओनली दैट, योगी लोग भी जाता है। अभी यहाँ तो नहीं बताया गया कि इन लोग क्या उपासना करते, योगी है। जब नहीं बताया तो कैसे हम बताए? ठीक है, এই তাৎপর্যে কোথাও নির্বিশেষ শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে? তো কেন আমি বলবো? यस, अच्युत करुणेश्वर प्रभु। प्रभु, इन लोगों का वहाँ रहना कितने दिनों का होता होगा लिमिट? ब्रह्मज्योति में हाँ, अनंत काल, अनंत काल। वहाँ गए तो बस वहीं पे हो गए। मैं तो कितना बार बोला, ब्रह्मज्योति माने स्पिरिचुअल सुसाइड, एकदम कितना बार इसको लिखा है, एकदम अनंत काल, खत्म। अने एज गुड एज ये ब्रह्म का बोल वैकुंठ। एज गुड एज क्या? वैकुंठ। वैकुंठ माने रहने की बात नहीं 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 नहीं, माने आप ड्यूरेशन का बात कर रहे हैं? हाँ हाँ, बोल सकते हैं, वैसे नहीं, वैसे बोलना ही लोग गलत समझ लेगा। माने अनंत काल सोचिए। यस, करुणा राधे माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। वैकुंठ से तो प्रभु नीचे आते ही नहीं है। ठीक है, फिर भी अभी ब्रह्मज्योति अभी इसीलिए बोला ना, कंट्रोवर्सी हो जाएगा। एज गुड एज बोलने में कंट्रोवर्सी आ जाएगा, उसको बोलिए अनंत काल, बस खत्म। प्रभु, इसका मतलब जितने भी मायावादी हैं वो लोग सब तो ब्रह्म ज्योति में ही जाते हैं, दे बिलीव इन दैट, तो they also become like, they also never come back and they become part of Brahma Jyoti. मायावादी लोग तो सब ब्रह्मज्योति में विलीन हो जाते हैं। Okay. अभी कल मायावादी को लेकर बहुत डिस्कशन हुआ हिज ग्रेस मोहन प्रभु के क्लास में मॉर्निंग में। मेरा वो सार्वभौम भट्टाचार्य को लेकर हमारा बात हो रहा था, क्योंकि मेरे को ये ज्ञान था कि सार्वभौम भट्टाचार्य मायावाद सन्यासी। हाँ, सार्वभौम भट्टाचार्य तो मायावाद सन्यासी। प्रभु को वही हम बता रहे थे, प्रभु बता रहे थे कि निर्विशेषवादी है, मायावाद नहीं है। तो फिर मेरे को जितना दूर स्मरण था, मैं बताया कि शिव जी को भगवान भेजता है ये ब्रह्म ज्ञान को पूरा आच्छादित कर देওয়ার জন্য, ঢেকে দেওয়ার জন্য, मायावाद प्रचार करने के लिए। और उसको ये उनको माने शिव जी को ये शंकर संप्रदाय में अवतार लेने बोलते हैं, शंकर संप्रदाय। और इसका शंकराचार्य, हाँ, इसका प्रमुख सन्यासी गृहस्थ थे, लेकिन प्रमुख आचार्य थे सार्वभौम भट्टाचार्य। शंकर संप्रदाय प्रमुख आचार्य, चीफ। जैसे हम लोग का संप्रदाय का प्रमुख आचार्य रूप गोस्वामी बोल सकते हैं, रूपानुगास है हम लोग, वैसे ही शंकर संप्रदाय का प्रमुख आचार्य सार्वभौम भट्टाचार्य। महाप्रभु डायरेक्ट जाके सोचा कि मेन आदमी कोई चेंज कर देते तो इसका सब अनुगामी लोग ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। That's why he targeted सार्वभौम भट्टाचार्य। मेन जगह पे जाकर ये उसको चेंज कर दे तो उसका अनुगामी जो है सब ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। जैसे महाप्रभु जब प्रकाशानंद सरस्वती को नहीं हाँ बनारस में चेंज कर दिया, तो प्रकाशानंद सरस्वती का अंडर में जितना था सब ऑटोमेटिक चेंज हो गया, करेक्ट? तो वैसे उन्होंने टारगेट, तो फिर वही थोड़ा उसमें थोड़ा क्लैरिटी था नहीं, आई मीन आई डोंट नो,
प्रभु ने बोला कि नहीं, वो मायावाद नहीं थे, वो निर्विशेषवाद थे। तो फिर मैंने पूछा था कि मायावाद फिर क्या होता है? फिर मायावाद ऑल्सो इंक्लूड्स निर्विशेषवाद? तो बोला नहीं, मायावाद मीन्स जो भगवान को स्वीकार कर रहा है इस रूप में कि वो हम लोग के जैसे ही व्यक्ति के रूप में अवतरण होते हैं और माया में फंस जाते हैं। हमारे जैसे भगवान हमारे जैसे रूप में अवतरण होते हैं और माया में फंस जाते हैं। और ये एक है, और एक मायावाद है कि हम लोग भी भगवान बन जाएंगे पुण्यता प्राप्त करके। यस, ऐसे कुछ बताया था प्रभु सुमना गौरंगी माता जी? यस प्रभु जी। ओके, तो निर्विशेषवाद क्या है? नॉन ड्वेल। निर्विशेषवाद माने भगवान को स्वीकार कर रहा है लेकिन भगवान को बोल रहा है निराकार है, भगवान का आकार नहीं है। और मायावाद है कि भगवान को विकृत रूप दे रहा है, बोल रहा है कि भगवान हम लोग ही है, भगवान हमारे यहाँ अवतरण होते हैं और माया में फंस जाते हैं। तो भगवान को एक नेगेटिव रूप देना है, दैट इज काइंड ऑफ मायावाद। निर्विशेषवाद पुजारी को स्वीकार करना, माथांते बोलबेन ना, आप बोलून ना, भगवान को स्वीकार करना लेकिन बोलना कि भगवान का आकार नहीं है, वो होगी निर्विशेषवाद। और मायावाद भगवान को नेगेटिव चीज बोलना कि भगवान माया में फंसा हुआ व्यक्ति, मैंने भगवान माया में फंस जाते हैं, ऐसे समथिंग लाइक। ये तो मैंने चुष्टावन किया था कल। ये सुमना गौरंगी माता जी? प्रभु जी प्रभुपाद कई जगह लिखते भी हैं इस तरह से कि ये माया का लास्ट अंतिम फंदा है व्यक्ति को फंसाने का, पूरा एकदम लास्ट, एकदम बहुत मतलब उस निम्न तरह का बताया गया है उनको। तो मैं भी थोड़ा ज्यादा इसमें क्लैरिटी प्रभु से एक बार जान करके फिर हम शेयर करेंगे, क्योंकि मैं यही पूछा था कि ये मायावाद लोग क्या निर्विशेष? ब्रह्मवादी के लिए भी बताइए ना प्रभु जी, ब्रह्मवादी भी अलग है, निर्विशेषवादी अलग है, और जो मायावाद जो आपने अभी बताया, जो अपने आप को भगवान बनाना चाहते हैं, वो तो एकदम लो कैटेगरी के है। हाँ, फिर मैंने पूछा था कि वो लो कैटेगरी, लेकिन वो किनका उपासना करता है? तो उसमें थोड़ा क्लैरिटी हमको लग रहा है और हमको चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जो भगवान को विकृत रूप देता है, लेकिन वो किसका उपासना तो किसी का करता होगा ना, मायावाद सन्यासी। किसका? निर्विशेष ब्रह्म का तो ना बताया गया था। नहीं 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 नहीं, तो वही एक बार क्लैरिटी और चाहिए इसमें, नहीं तो हाँ, आगे बढ़ते हैं। ये सचिव सुधना शिवाश को बोलो। হরে কৃষ্ণ বাবু, আমরা এখন এই পর্যন্ত এটাই ধরে রাখতে পারি যে নির্বিশেষবাদী সর্বব্রহ্মবাদী মায়াবাদী না, সব ব্রহ্মবাদী মায়াবাদী না। ओके, ব্যাস এইটুখানি ধরতে পারি, আরো পড়তে পড়তে জানতে পারি, ব্যাস। करेक्ट। अगला कहां तक हम लोग पहुंचे अभी? 18 नंबर श्लोक होगा। 18 नंबर श्लोक होगा अभी, ठीक है। 18 नंबर श्लोक। অন্তর্যামী যারে যোগ শাস্ত্রে কয়, বলুন দাদু। অন্তর্যামী যারে যোগ শাস্ত্রে কয়, আত্ম অন্তর্যামী যারে যোগ শাস্ত্রে কয়, আত্ম অন্তর্যামী যারে যোগশাস্ত্রে কয়, সেই গোবিন্দের অংশ বিভূতি যে হয়, সেই গোবিন্দের অংশ বিভূতি যে হয়। যোগ শাস্ত্রে যাকে অন্তর্যামী বা পরমাত্মা বলে বর্ণনা করা হয়েছে, তিনি হচ্ছেন গোবিন্দের অংশ বিভূতি। ঠিক আছে, परमात्मा जो है वो भगवान का ही अंश है। परमेश्वर भगवान স্বাভাবিকভাবে আনন্দময়, তার আনন্দ উপভোগ বা লীলা বিলাস সবকিছুই সম্পূর্ণরূপে চিন্ময়। তিনি সম্পূর্ণরূপে জড়জগতের অতীত। এই জড়জগতের সবকিছুই দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতার দ্বারা পরিমাপ করা হয়, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের রূপ, দেহ ও অস্তিত্ব অন্তহীন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে জড়জগতের কোনো বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত নন।
জড় জগৎ সৃষ্টি হয়েছে তার পুরুষ অবতারের মাধ্যমে, যিনি মহৎ তত্ত্ব ও সমস্ত বদ্ধ জীবের পরিচালনা করেন। यस, बोलिए माताजी। तो मुझे यहाँ पे जो सेकंड, यहाँ पे थर्ड लाइन जो है, वे अस्तित्व के चतुर आयाम में रहते हैं। चतुर आयाम, ये 18 नंबर श्लोक का ही है ना प्रभु जी? नहीं, मैं सोच रहा हूँ उसका कोरस्पॉन्डिंग बेंगोली सेंटेंस कौन सा होगा। এই জড়জগতে সবকিছুই দৈর্ঘ্য প্রস্থ প্রস্থ, नहीं इसके आगे, মানে इसके बाद में, पहले उसके पहले তিনি সম্পূর্ণরূপে জড়জগতের অতীত, মানে জড়জগত से अतीत है, माने नॉट इन टच विद जड़जगत। हिंदी में क्या बोला आपने अभी? नहीं प्रभु जी, यहाँ कुछ लिखा है, उनके अमोद प्रमोद या उनकी लीलाएं पूर्णतः दिव्य है, वे अस्तित्व के चतुर आयाम में रहते हैं। चतुर आयाम, इंग्लिश में क्या लिखा है करुणावती माता जी? हाँ प्रभु, इसीलिए मैंने हाथ उठाया था। He is in the fourth dimension of existence, for although the material world is fourth measured, dimension. Okay, understood. is measured by the limitation of length, breadth and height. The supreme Lord is completely unlimited in his body, form and existence. इसीलिए फोर्थ चतुर आयाम माने ये 3D में नहीं है। 3D माने क्या? लेंथ, ब्रेथ, हाइट। तो फोर्थ डायमेंशन, इसीलिए बंगाली में लिखा है তিনি সম্পূর্ণ রূপে জড় জগতের অতীত। जड़ जगत में जो जो भी है लेंथ, ब्रेथ, हाइट से नापा जा सकता है, लेकिन वो भगवान उससे परे है। क्लियर है? अच्छा, इसी को फोर्थ डायमेंशन बोला गया है, 4D। তিনি পুরুষ অবতারের মিউট করিয়ে, তিনি পুরুষ অবতারের তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করার মাধ্যমে জীব জড় প্রকৃতির 24টি উপাদানের দ্বারা গঠিত এই জড় জগতের স্তর অতিক্রম করতে পারে। ওকে, মহাবিষ্ণুর একটি বিস্তার হচ্ছে ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু, যিনি প্রতিটি জীবের হৃদয়ে পরমাত্মা রূপে বিরাজ করেন। তার সমষ্টিগত জীবের परमात्मा বা দ্বিতীয় পুরুষ হচ্ছেন गर्भदक्षायी विष्णु। हाँ, कल ही हम लोग चर्चा कर रहे थे ना, समष्टिगत। सो समष्टि एक ब्रह्मांड का, समष्टि क्षीरोदक्षायी विष्णु है, समष्टि परमात्मा इक्वल्स टू गर्भदक्षायी विष्णु। करेक्ट? अभी बस नहीं, ठीक है। समष्टि मीन्स प्रभु जी ये भी सकते हैं कि सारे गर्भो, समष्टि माने कलेक्टिव, जितना भी परमात्मा है सबको अगर कलेक्ट करेंगे तो एक गर्भदक्ष, क्योंकि एक गर्भदक्षायी विष्णु एक ब्रह्मांड में प्रकट होकर ब्रह्मा जी को प्रकट करके पूरा जीव को भरा देता है। तो जितना भी परमात्मा को अगर आप कलेक्ट करेंगे तो एक गर्भदक्षायी विष्णु। और प्रभु जी सारे गर्भोदक्षायी विष्णु मिलकर के एक महाविष्णु ऐसे भी समझ सकते हैं। वही मैं बोलने जा रहा था, फिर मैं सोचा अब बोलना ठीक होगा या नहीं। सारे गर्भोदक्षायी विष्णु, सारे ब्रह्मांड, जितना भी ब्रह्मांड है, हर एक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षायी, अगर सारे गर्भोदक्षायी विष्णु को कलेक्ट किया तो एक ठो महाविष्णु, तो इसका मतलब महाविष्णु एक ठो ही है। हाँ, वही ठीक है। जड़ जगतेर अनंत कोटि ब्रह्मांडेर सृष्टिकर्ता हच्छेन कारण समुद्रे शायित परम पुरुष अवतार माने महाविष्णु, ताके बला है महाविष्णु। এই তিন পুরুষ অবতার জড়জগতের क्रियाकलाप नियंत्रण करें। करेक्ट? ये जो आपने बोला समष्टि गर्भोदक्षायी विष्णु इक्वल्स टू 1 महाविष्णु, ये प्रभुपाद जी बोला कहीं? नहीं बोला। तो हम लोग को बोलना ठीक नहीं रहेगा कि एक ही महाविष्णु है, और रिस्क हो जाएगा बोलना। यस, बोलिए प्रभु। प्रभु, ये महाविष्णु का सवाल यहाँ कैसे आएगा? यदि भगवान के बने विशेष में से रहते हैं, फिर भी वो पूर्ण रहते हैं। साउंड नॉट क्लियर, फिर से साउंड नॉट क्लियर थोड़ा। हाँ, जैसे कि भगवान के जितने भी अंश हैं, उस सभी अंशों का अगर जमा किया जाए तो महाभगवान थोड़ी होता है, भगवान ही रहते हैं। उसी तरह उस लॉजिक से महाविष्णु तो नहीं है यहाँ पर, गर्भोदक्षायी विष्णु के जितने अंश आए हैं जीवों में,
उनको यदि कलेक्ट किया जाए तो फिर ये गर्भोदय विष्णु ही रहेंगे, क्योंकि उनसे ये निकले हुए हैं। करेक्ट, वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। सब भगवान को आप ऐड करेंगे तो महाभगवान बनेगा क्या? वेरी गुड पॉइंट। सब जीवों को ऐड करने से गर्भोदक्षाय विष्णु ठीक है, क्योंकि उनसे निकला हुआ है। हाँ, वेरी गुड पॉइंट, अप्रिशिएट इट। प्रभु महाविष्णु से भी तो सब गर्भोदक्षाई विष्णु निकले हैं। ये कहाँ लिखा है? महाविष्णु से ही तो, कारण दक्षाई विष्णु से ही तो सारे ब्रह्मांड, और सारे ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाई विष्णु प्रवेश करता है। तो ऐसे बोल नहीं सकते। देखिए, महाविष्णु से, सुनीति राधिका माता जी म्यूट करिए, महाविष्णु से ब्रह्मांड निकला हुआ है, ये मैं हजम कर लूंगा। महाविष्णु से गर्भोदक्षाय विष्णु निकला है, ये तो मैं हजम नहीं करूंगा। हमको जितना दूर मालूम है, महाविष्णु से ब्रह्मांड निकलता है और हर एक ब्रह्मांड में एक गर्भोदक्षाय विष्णु प्रवेश करता है। तो गर्भोदक्षाय विष्णु कहाँ से आते हैं? उन्हीं का तो विस्तार है ना। कहाँ से आता है? विस्तार है, विस्तार है ना, विस्तार है। पुरुष अवतार में आता है तो भगवान का सेकंड, द्वितीय चतुर्व्यूह का ही विस्तार है। द्वितीय चतुर्व्यूह जो संकर्षण है उसी का विस्तार है, वो बोल सकते हैं। लेकिन ये तो बोलना, मैंने कहीं लिखा हुआ तो ठीक है बोलना, नहीं तो बोलना ठीक नहीं होगा कि महाविष्णु के शरीर से गर्भोदक्षाय विष्णु निकलता है, वो तो हजम नहीं होता। ब्रह्मांड निकलता है, ठीक है, वो मान लिया। यस, सुनीति राधिका माता जी, आप कुछ बोल रहे थे? नहीं, पर क्लियर हो गया हूँ, ठीक है। मेरे को लग रहा है कि महाविष्णु एक ही है, मेरे को भी ये लग रहा है कि उनके रोम रोम से ब्रह्मांड निकला, लेकिन अभी आपने तो क्लियर किया कि गर्भोदक्षाय विष्णु तो नहीं निकलते हैं। ऐसा कोई लाइन में देखा नहीं, प्रभुपाद जी ने कोई लाइन में देखा नहीं कि महाविष्णु के शरीर से गर्भोदक्षाय विष्णु निकलता है। ये तो मैंने ब्रह्मांड निकलते वो देखा। और प्रभु जी, जितने अवतार होते हैं वो क्षीरोदक्षाय विष्णु से होते हैं ना? हाँ, ये आया था। यस, निर्गुणा नीलंबरी माता जी। प्रभु जी, अशोक मिश्रा प्रभु जी क्या बोले, वो एक्चुअल में समझ में नहीं आया, वो क्या बोले? आप बोले ये ठीक है। हाँ, अच्युत कर्णेश्वर प्रभु ने बोला था कि समष्टि परमात्मा, समष्टि माने समेशन परमात्मा, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्योंकि गर्भोदक्षाय विष्णु से परमात्मा माने जीव आता है, और तो समष्टि परमात्मा को गर्भोदक्षाय विष्णु बोल सकते हैं, दैट इज ओके। लेकिन समष्टि गर्भोदक्षाय विष्णु को कारणोदक्षाय विष्णु बोलना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि ये उन्होंने बताया, क्योंकि सब भगवान, सब तो गर्भोदक्षाय विष्णु भगवान का अंश है, हाँ या ना? तो समस्त सब भगवान के अंश को अगर आप एकत्र कर लेंगे तो महाभगवान बनेगा, तो ये तो जरूरी नहीं है। जीव को कर सकते हैं आप समष्टि। गर्भोदक्षाय विष्णु तो सब तो विष्णु तत्व है, विष्णु तत्व को आप समष्टि करेंगे तो महाविष्णु तत्व ऐसे कुछ तो है नहीं। ओके प्रभु। या उसको उल्टा देखेंगे कि महाविष्णु से सब गर्भोदक्षाय विष्णु निकल रहा है, ये भी तो कहीं लिखा नहीं है। सब ब्रह्मांड निकल रहे, वो लिखा हुआ है। ओके, आगे कहाँ तक थे हम लोग? अभी ब्राह्मण में मतलब सेकंड पैराग्राफ से लास्ट पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ। মহাবিষ্ণুর একটি বিস্তার হচ্ছেন ক্ষীরোদক্ষায় বিষ্ণু, যিনি প্রতিটি জীবের হৃদয়ে পরমাত্মা রূপে বিরাজ করেন। আর সমষ্টিগত জীবের পরমাত্মা বা দ্বিতীয় পুরুষ অবতার হচ্ছেন গর্ভোদয়। ये तो हो गया। প্রামাণিক শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে প্রতিটি জীব যেন পরমাত্মার সঙ্গে তাদের সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে। मैंने इंग्लिश में जो बोलते हैं टू रीएस्टैब्लिश द लॉस्ट रिलेशनशिप। বাস্তবিকই যোগ পদ্ধতি অবলম্বন করে পরমাত্মার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে জড়া প্রকৃতির প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া যায়। योग पद्धति से मुक्त हो सकता है कोई व्यक्ति। गुड। যিনি সৃষ্টি তত্ত্বের সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খানুভাবে অধ্যয়ন করেছেন তিনি অতি সহজেই জানতে পারেন যে এই পরমাত্মা হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের अंश प्रकाश। क्लियर? अगला श्लोक 19। अनंत स्फटिके जयছে এক সূর্য ভাসে। অনন্ত স্ফটিকে জয়ছে এক সূর্য ভাসে। তৈছে জীবে গোবিন্দেরও অংশ প্রকাশে। তৈছে জীবে গোবিন্দেরও অংশ প্রকাশে। এক সূর্য যেমন অনন্ত স্ফটিকে প্রতিফলিত হয়ে বহু গুণে প্রকাশিত হয়, তেমনি গোবিন্দ নিজেকে পরমাত্মা রূপে
समस्त जीवेर हृदय प्रकाशित करें। सोचिए स्फटिक, एक पत्थर होता है ना, सोचिए ये स्फटिक है, ठीक है। तो इसको अगर हम सूर्य किरण के सामने रखेंगे तो क्या होगा, चिक 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 करके बहुत 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 ऐसे डॉट 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 लाइट निकलेगा ना इससे, करेक्ट ना। तो एक ही सूर्य था, लेकिन उसके सामने में स्फटिक लाया तो बहुत सूर्य हो गया, छोटा 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 छोटा। वैसे ही भगवान एक ही है, कृष्ण, लेकिन भगवान अपने आप को हर एक हृदय में परमात्मा रूप में विस्तार किया है। इजी है ना। সূর্য একটি বিশেষ স্থানে অবস্থিত হইলে অন্তহীন মণিরত্ন তার প্রতিফলন হয় এবং তখন মনে হয় সূর্য যেন সেই মণিগুলির মধ্যে অসংখ্য রূপে অবস্থান করছে। তেমনি পরমেশ্বর ভগবান যদিও নিত্যকাল ধরে তার চিন্ময় ধাম গোলক বৃন্দাবনে বিরাজমান, তবুও তিনি পরমাত্মা রূপে সকলের হৃদয়ে প্রতিফলিত হন। উপনিষদে বলা হয়েছে যে জীবাত্মা ও পরমাত্মা একই বৃক্ষের উপবিষ্ট দুইটি পক্ষীর মতো। ये तो बहुत फेमस एग्जांपल दिया हुआ है शास्त्र में। कौन सा उपनिषद याद है? मुंडक उपनिषद की कोई वो कठोपनिषद होगा। दो चिड़िया वाला स्टोरी। एक चिड़िया कौन है? आत्मा। दूसरा चिड़िया कौन है? परमात्मा। परमात्मा जीव के तार पूर्वकृत कर्मफल अनुसारे सकाम कर्मे नियुक्त करें, किंतु जीवेर এই কর্মের সঙ্গে পরমাত্মার প্রত্যক্ষ কোনো সংযোগ নেই। জীব যখনই সকাম কর্ম ত্যাগ করে ভগবানের পরমাত্মার শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে অবগত হয়, তার সেবায় যুক্ত হয়, তৎক্ষণাৎ সে সব রকমের জড় উপাধি মুক্ত হয় এবং সেই শুদ্ধ অবস্থায় সে বৈকুণ্ঠ নামক ভগবত ধামে प्रवेश करे। तो परमात्मा कुछ डिस्टर्ब नहीं करता, चुपचाप बैठा रहता है। वो दूसरा वाला जो पंछी है, कोई इंटरफियर नहीं करता है। लेकिन ये भी बोलना कोई इंटरफियर नहीं करता बोलने भी गलत होगा, क्योंकि उपदेष्टा अनुमंता है, उपदेश देता है, गाइड करता है, मत करो ये गलत है, ये करो ये अच्छा है। जब जीव एक पैर बढ़ाता है तब। यस माता जी। मुझे मुंडक और श्वेताश्वर उपनिषद दोनों में दिया हुआ है। हाँ क्या, कौन सा उपनिषद? मुंडक और श्वेताश्वर। अच्छा, श्वेताश्वर जो उपनिषद है दोनों में एग्जांपल दिया। ओके। প্রতিটি জীবের পথ প্রদর্শক পরমাত্মা, দেখি লেখা है পথ প্রদর্শক। পথ প্রদর্শক মানে ये करो ये ना करो, गाइडेंस, गाइड। পথ প্রদর্শক পরমাত্মা কখনোই জীবের কামনা বাসনা চরিতার্থ করার কাজে যুক্ত হন না। चरितार्थ माने सोचिए कामना वासना, किसी का इच्छा हुआ हम थोड़ा नॉनवेज खाएंगे तो परमात्मा बोलेगा नहीं खाओगे तो एकदम नहीं, माना एकदम बैड, वेरी बैड, ऐसे कभी नहीं करेगा भगवान। चरितार्थ एकदम नहीं, उनका ये काम नहीं है जबरदस्ती किसी को माने भक्ति में लाना, कभी नहीं। কিন্তু জড়া প্রকৃতির মাধ্যমে তাদের কামনা বাসনা চরিতার্থ করার আয়োজন তিনি করে দেন। তবে वो आयोजन कर देगा उल्टा। कितना कोई बोल सकता है कितना कठोर है भगवान? नहीं, एकदम नहीं। জীব যখনই পরমাত্মার সঙ্গে তার নিত্য সম্পর্কের কথা অবগত হয়ে তার দিকে অবলোকন করেন, তৎক্ষণাৎ সে সমস্ত জড়জাগতিক বন্ধন থেকে মুক্ত হয়। খ্রিস্টান দার্শনিকেরা যারা কর্মফলে বিশ্বাস করে না, তর্কচ্ছলে তারা বলে যে পূর্বকৃত যে কর্ম সম্বন্ধে কোনো রকমই ধারণাই আমাদের নেই, तार फल किभाবে এই জীবনে ভোগ করা সম্ভব। समझ में आ रहा है? क्रिश्चियनिटी में क्या बोलता है? बोले हम लोग को तो कुछ याद ही नहीं है पूर्व में हमने क्या किया, तो इसका फल अभी क्यों हम भोग करेंगे? अरे भाई याद नहीं तो कुछ भोग नहीं करोगे क्या? हाँ, सोचिए कोई शराब पीते पीते कुछ किसी का मर्डर कर दिया, जब उसका ज्ञान आया तो पुलिस को बोलेगा अरे भाई तब तो मैं शराब पी रहा था, तुमको तो कुछ याद ही नहीं है, तब तो मैं होश में नहीं था। तो जो अपने होश में नहीं था उसका लिए क्यों आप हमको पनिशमेंट देंगे? पुलिस सुनेगा इसको? नहीं। तो ये उधर बोलता है क्योंकि उन लोग कर्मफल के बारे में मानता नहीं है इस धर्म में। बोलिए माता जी। ईसाई ही नहीं, हमारे धर्म के लोग भी बोल, यहाँ जो लिखा है प्रभुपाद जी लिखा है, हमको देखा है पूरे जन्म में क्या। আদালতে প্রথমে সাক্ষীর মাধ্যমে কয়েকদিন তার অপরাধ সম্বন্ধে অবগত
করানো হয় এবং তারপর তাকে দণ্ড দেওয়া হয়। মৃত্যু যদি পুণ্য বিস্মৃতি হয় তাহলে তার পূর্বকৃত পাপ কর্মের জন্য দণ্ডভোগ করতে হবে কেন? এই ধরনের ভ্রান্তিমূলক প্রশ্নের উত্তর পরমাত্মা উপলব্ধির মাধ্যমে যথাযথভাবে পাওয়া যায়। পরমাত্মা হচ্ছেন জীবের পূর্বকৃত কার্যকর্মের সাক্ষী। কোনো মানুষের হয়তো ছোটবেলার কথা মনে না থাকতে পারে, কিন্তু তার পিতা যিনি তাকে ধীরে ধীরে বড় করে হতে দেখেছেন তার অবশ্যই মনে থাকে। তেমনি জীব বিভিন্ন জীবনে বিভিন্ন দেহ পরিবর্তন করলেও পরমাত্মা সর্বদাই তার সঙ্গে অবস্থান করে তার সমস্ত কার্যকলাপের কথা মনে রাখেন। इसलिए आत्मा के साथ साथ परमात्मा भी ट्रेवल करता है जब देह परिवर्तन होता है। Whenever there is transmigration of soul, three things travel. Always remember, 3 चीज रहता है जब देह परिवर्तन होता है। क्या? आत्मा, परमात्मा, सूक्ष्म शरीर। ये 3 चीज हमेशा नया शरीर में प्रवेश करेगा। अभी हम मनुष्य शरीर में है, कल हम कोई पंछी का शरीर में जाएंगे तो ये 3 चीज भी मनुष्य शरीर से पंछी का शरीर में प्रवेश करेगा। क्या? मेरा आत्मा, परमात्मा और मेरा सूक्ष्म शरीर। यस, प्रीतिमेनंद प्रेमाते जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आज इतने समय बाद ये वाला चीज इतना अच्छे से क्लियर हुआ है यहाँ पर कि क्यों हम लोग दंड भोग कर, मतलब क्यों हम लोग को अपना पुराना कर्म का सजा मिलता है, क्योंकि परमात्मा साथ साथ चलते रहते हैं और हमें याद रहे उनको याद रहता है, इसीलिए ये चीज होता है, वरना क्यों हो। आज इतना अच्छे से ये क्लियर है यहाँ पे। प्रभु जी, खाली दंड ही नहीं, अच्छा कर्म करते तो उसका भी फल भगवान देते हैं। एकदम। यस, अच्युत करुणेश प्रभु। और ये सूक्ष्म शरीर कौन सा होता है? मन बुद्धि अहंकार। ये साथ साथ जाता है एकदम। अगर ये साथ साथ नहीं जाएगा तो हम लोग जो यूनिक है वो कैसे, हमारे यूनिकनेस कैसे रहेगा? यूनिकनेस समझते हैं आप? हर एक जीव अलग दूसरे से है, वो कैसे रहेगा? वो वेरिगेटेडनेस कैसे रहेगा? वो तो वजह नहीं रहेगा, फिर तक तो फ्रेश है। तो आपका जो पुराना वाला जो बैलेंस है मन बुद्धि और अहंकार का, वो नया शरीर में प्रवेश होता है, वो नया बैलेंस हो जाता है। जैसे हम लोग अकाउंट्स में बोलता है ना, लास्ट ईयर्स क्लोजिंग बैलेंस इज दिस ईयर्स ओपनिंग बैलेंस। वैसे ही लास्ट शरीर का क्लोजिंग सूक्ष्म शरीर, नया शरीर का ओपनिंग सूक्ष्म शरीर। रिकॉर्डिंग। हाँ, तो इसीलिए सोचिए कोई बच्चा भी जन्म लिया, उसका मन बुद्धि अहंकार वो पिछले जन्म में जब शरीर में बूढ़ा त्याग किया, वही अभी बच्चा हो गया, उसका शरीर में प्रवेश करेगा। कैसे पता चलेगा? कोई बच्चा देखेगा बचपन से ही तैरना आता है, तो इसका मतलब क्या समझ लेना चाहिए? पूर्व जन्म में या तो मछली था नहीं तो स्विमर था ऐसे कुछ होगा। हाँ, तो कोई बच्चा अगर सोचिए बहुत मारपीट करता है, बहुत होता ना, बहुत उग्र है, नेचर उग्र है, रहता ना ऐसे, तो क्या समझ लेना चाहिए? पूर्व जन्म भी जब शरीर छोड़ा था ऐसे ही उग्र व्यक्ति था, बॉक्सर था, बॉक्सर। तो ऐसे समझना चाहिए कि ये तो सब उसका नेचर कैरी फॉरवर्ड होता है। नेचर मैंने मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म शरीर। तो उसका अंतिम समय जब पूर्व जीवन में उनका जो मन बुद्धि और अहंकार का जो स्थिति था वही अभी नया बच्चा का शरीर में उसका वही स्थिति होगा। इसीलिए प्रहलाद महाराज असुर कुल में जन्म लिया, छोटा बच्चा था। अरे छोटा बच्चा तो असुर कुल या देवता लोग का कुल में हो, खेला धुला करेगा ना, बच्चे का तो प्रवृत्ति है, वो खेला धुला नहीं करता था। ये आता है श्लोक। He did not used to play with उसके समा चिल्ड्रन के साथ, नहीं खेलता था वो बचपन से ही भक्ति करता था। वो सोचता था बाल्यावस्था वेस्ट ऑफ टाइम प्लेइंग। तो क्यों? पूर्व जन्म में भी वैसे था, वो टाइम वेस्ट नहीं करता था उल्टा पुल्टा काम, बेकार काम करके। यस,
सोना करेंगे माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो वो वहाँ जैसे भागवतम में एक दिन पढ़ रहे थे कि कोई की मांस खाने की इच्छा है और उनका डेथ हो गया, तो जो उन्होंने पाप कर्म किया वो तो उनको नरक में भोगना ही पड़ता है, और उसके बाद में फिर उनको ट्रेनिंग दिया जाता है कि वो पशु, क्योंकि मीट खाने की इच्छा है तो उनको मनुष्य ये पशु शरीर मिलेगा, तो उनको फिर वहां पे ट्रेनिंग भी दिया जाता है। तो वहां पर भी क्या हमारा सूक्ष्म शरीर का कुछ चेंजिंग होता है क्या? ट्रेनिंग के बारे में तो मैंने नहीं सुना कि ट्रेनिंग। हाँ प्रभु जी, अभी भागवतम के इसी कपिल मुनि भगवान बताते हैं, वो वाला पोर्शन कल शेयर कीजिए, बट डिस्कस कर लेंगे। हम आपको पर्सनल सेंड करते हैं। यस प्लीज। यस कालिंदी सुविलासिनी माता जी। यस प्रभु, ये मन बुद्धि अहंकार हम तब छोड़ते हैं, आई थिंक व्हाट आई नो, जब हम मतलब पूरा शुद्ध होके गोलोक चले जाते हैं। एकदम करेक्ट। वो आवरण है ना, 8 आवरण है, 8 आवरण है ना ब्रह्मांड का। हाँ, वही सब कपड़ा छोड़ के चले जाते हैं एकदम भगवान के धाम में। जितना गंदा कपड़ा से उधर छोड़ के चले जाते हैं, फिर आत्मा जाता है। यस निर्गुण नलिनी माता जी। मुझे अहंकार जाता है ना सब में, अहंकार जाता है सब में। आई डोंट थिंक सो। मन बुद्धि अहंकार, मैं भगवान का दास हूँ, ये अहंकार जाता है। हाँ, वो तो जरूर, वो तो अच्छा अहंकार है। यस निर्गुण नलिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप बोले कि वो प्रहलाद महाराज के लिए कि वो पिछले जन्म में थे, लेकिन जब वो कयाधु माता जी के गर्भ में थे तब भी तो नारद भगवान जो उनको बोल रहे थे तो वो सब सुन रहे थे, तो उसका भी तो फर्क पड़ा होगा ना कि वो बचपन से ऐसे थे। नारद मुनि भी उनको बोला होगा, तो नारद मुनि भी तो एरा गेरा को बोलेगा नहीं ना। नारद मुनि भी तो कोई एक जो योग्य है व्यक्ति, जो योग्य बालक है, ठीक है, गर्भ में है, उसी को जाकर बोलेगा। ओके, এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, মদন ভরিয়া সবে বল হরি হরি, কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী, জয়।